never seen with my eyes this kind of terrible devastation. It is catastrophic, of proportions unknown to the people of Pakistan. Will this be the last time a country is going to be victim of this devastation? Or God forbid, others will also become victim of this tragedy. And this is where I would appeal to all of you that let SCO stand up and build a wall against this menace. محفوظ مستقبل کی خاطر موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کرنا ہوگی۔ سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، 400 بچوں سمیت 1400 سے زیادہ اموات ہوئیں۔ بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر اور فصلوں کو نقصان پہنچا۔ مشکل وقت میں دنیا پاکستان کی مدد کے لیے آگے آئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب۔ Peace in Afghanistan would ensure peace in Pakistan and other countries in the region. It will be a big mistake if we ignore Afghanistan this time around. Strengthening Afghanistan in the security and counter-terrorism domain should run parallel to SCO's support to the Afghan people. افغانستان میں امن و استحکام خطے کی ترقی کی ضمانت۔ افغانستان کو نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ عالمی برادری افغانستان میں معاشی اور اقتصادی استحکام کے لیے کام کرے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے SCO ممالک کو مل کر کاوشیں کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان اور چین کا دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان سمرقند میں ملاقات۔ تنازع کشمیر پر چین کے اصولی موقف کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کے سیلاب متاثرین کی فراخ دلانہ امداد پر چین سے اظہار تشکر۔ صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو عملیت پسندی اور کارکردگی کے حامل شخصیت قرار دیا۔ وزیر اعظم کے آذربائیجان اور قازقستان کے صدور سے بھی ملاقاتیں، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا نگورنو قراباغ پر آذربائیجان کے اصولی موقف کی حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بخارا کا دورہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری، درجات کی بلندی کے لیے دعا، احادیث نبوی کی جمع اور تدوین شاندار کارنامہ، اہل اسلام مدتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تباہال سڑکیں اور مکانات، سیلاب زدہ علاقوں میں تا حد نگاہ پانی ہی پانی۔ متاثرہ علاقوں میں مزید 22 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سیلابی ریلا سمندر میں گرنے کا عمل جاری۔ نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن کے اجلاس میں غذائی اجناس فاسٹ ٹریک پر منگوانے کی ہدایت۔ عوام کے لیے غذائی اجناس کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں شاہراہوں کی بحالی کے حوالے سے اہم اجلاس، وفاقی وزیر اسد محمود اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی شرکت۔ NHA حکام کی متاثرہ سڑکوں کی بحالی سے متعلق بریفنگ، عوام کی سہولت کے لیے سکھر حیدرآباد موٹر وے کی جلد تعمیر پر اتفاق۔ سیلاب کی وجہ سے معطل ریلوے روٹس کی بحالی کے لیے اقدامات۔ کوئٹہ تافتان ٹریک 30 ستمبر تک بحال کر دیا جائے گا۔ ڈیرہ الیار جیکب آباد ٹریک پر پانی اترتے ہی کام شروع کیا جائے گا۔ بولان ریلوے برج کی دوبارہ تعمیر کا جلد آغاز ہوگا۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور بحالی کی سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری۔ مسلح افواج اور سول ادارے امدادی سرگرمیوں میں پیش۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا سجاول اور ملحقہ علاقوں کا دورہ، متاثرین کی بروقت امداد یقینی بنانے پر جوانوں کے جذبے کی تعریف۔ سرکاری وسائل کے بے دریغ استعمال کے خلاف باتیں کرنا آسان، عملی مثال بننا مشکل۔ جنگ اخبار میں چھپنے والے آرٹیکل،
لاڈلا خان سے سادہ لوح عباسی تک میں سرکاری معلومات کی روشنی میں انکشاف، عمران خان کو 255 سیکیورٹی اہلکاروں کی فراہمی، پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز بھی تعینات، 5 گاڑیاں اور جیمرز بھی فراہم کیے گئے۔ ملک میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ، کراچی میں 1600 سے زائد کیسز رپورٹ، لاہور میں ڈینگی کے 158 اور اسلام آباد میں 113 کیسز رپورٹ، سندھ حکومت کا ڈینگی لاروا تلف کرنے کے لیے مہم شروع کرنے کا اعلان۔ مقبوضہ کشمیر میں جذبہ آزادی کو دبانے کے مودی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے، جماعت اسلامی کے رہنماؤں سمیت درجنوں افراد گرفتار، مذہبی رہنماؤں پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو، وحشیانہ مظالم سے کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو متزلزل نہیں کیا جا سکتا، حریت کی عادت۔ برطانوی عوام کا جہانی ملکہ سے اظہار محبت، آخری دیدار کے لیے ویسٹ منسٹر کے باہر ہزاروں افراد کی طویل قطاریں، کنگ چارلز کی دعائیہ تقریب میں شرکت، جہانی ملکہ الزبتھ کی تدفین پیر کو لندن میں ہوگی۔ بحر اوقیانوس اور بحر منجمد شمالی کے درمیان روس کی جنگی مشقیں، آبدوزوں سے اینٹی شپ کروز میزائل فائر، 400 کلومیٹر تک اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں سلما قاصر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ یہ سمجھداری تو نہ ہوئی کہ ٹریکٹر ہو پھر بھی آپ اپنے پرانے طریقوں سے ہل چلائیں۔ ٹریکٹر اپنائیں بالکل اسی طرح، موبائل ہے تو موبائل اکاؤنٹ کھلوائیں۔ یہ بہت آسان ہے، یعنی سم نیٹ ورک کوئی بھی ہو، بس *2262# ملائیں اور دیے گئے بینکس میں سے کسی بھی بینک میں آسان موبائل اکاؤنٹ کھلوائیں۔ ورنہ سب پوچھیں گے کہ موبائل ہے تو موبائل اکاؤنٹ کیوں نہیں؟ تو اب موبائل کا بیلنس ہو یا بجلی گیس اور دیگر بلز، پیسہ بھیجنا یا وصول کرنا ہو یا دیگر سروسز سے فائدہ اٹھانا ہو، آسان موبائل اکاؤنٹ سے سب آسان۔ آسان موبائل اکاؤنٹ، آپ کا اکاؤنٹ، آپ کا اختیار۔ نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعتماد کے ساتھ۔ اگر آپ 500 مربع گز یا اس سے بڑے پلاٹ، 1000 سی سی سے بڑی گاڑی یا فلیٹ کے مالک ہیں، سالانہ تنخواہ 6 لاکھ سے زائد یا کاروباری آمدن 4 لاکھ سے زائد ہے، بجلی کے صنعتی یا کمرشل صارفین ہیں، کاروباری، صنعتی یا تاجر تنظیموں یا کسی پروفیشنل باڈی کے ممبر ہیں، بیرون ملک اثاثے یا ذرائع آمدن رکھنے والے پاکستانی فائنینشیل کلوزنگ کرنے والی کمپنی یا فلاحی ادارہ ہیں، تو آپ کے لیے انکم ٹیکس گوشوارہ داخل کرانا لازمی ہے۔ یاد رکھیں، 30 ستمبر آخری تاریخ۔ FBR۔ خبرنامے کا آغاز اس خبر سے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی کو مد نظر رکھتے ہوئے محفوظ مستقبل کی خاطر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جامع حکمت عملی مرتب کریں۔ تاریخی شہر سمرقند میں تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی برادری افغانستان میں استحکام کے لیے کردار ادا کرے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے ہیڈز آف اسٹیٹ کونسل اجلاس میں رکن اور مبصر ملکوں کے سربراہان سمیت ڈائیلاگ پارٹنرز اور عالمی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ECO सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। समरकंद के कांग्रेस सेंटर पहुंचने पर मेजबान मुल्क उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीन, रूस, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तंजीम के मुस्तकिल रुकन हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को सैलाब की सूरत में बड़ी कुदरती आफत का सामना है। Millions of people have been displaced. 1,400 people have been killed, including 400 children. And million houses have been partially or completely damaged. I have never seen with my eyes this kind of terrible devastation. It is catastrophic, of proportions unknown to the people of Pakistan. And of course, by extension, to the entire world. We are very grateful to honorable members sitting on this table who have come to our help at this time of dire need. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ECO मुल्कों से अपील की कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की जाए ताकि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। It is a result of climate change, but the point at issue is, will this be the last time a country is going to be victim of this devastation? Or God forbid, others will also become victim of this tragedy. And this is where I would appeal to all of you and request to all of you earnestly that let SCO stand up and build a wall against this menace. Let's at this forum make a plan to save our future generations. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तिकाम से खित्ता मुस्तफीद होगा। तंजीम के मुल्कों को अफगानिस्तान की समाजी व माशी तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। Peace in Afghanistan would ensure peace in Pakistan. In other words, what is good for Afghanistan is good for Pakistan and vice versa. And other countries in the region. It will be a big mistake if we ignore Afghanistan this time around. It is my country's considered opinion that strengthening Afghanistan in the security and counter-terrorism domain should run parallel to SCO's support to the Afghan people in the socio-economic arenas. दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। उन्होंने रुकन मुल्कों से कहा कि हमें मिलकर दुनिया से इस नासूर का मुकम्मल खात्मा करना है। We have paid huge sacrifices to defeat the monster of terrorism. Thousands and thousands of Pakistanis were martyred. So there cannot be a bigger manifestation of our commitment, our dedication to fight this menace collectively. And I would certainly urge honorable members of SCO to join hand together and fight this menace of extremism, separatism, and terrorism and wipe it out from the face of the earth. वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, कतर, बहरीन, मालदीव, मुत्तहिदा अरब अमारात और म्यांमार का डायलॉग पार्टनर बनना खुश आइंद है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब करते हुए रुकन मुल्कों के रहनुमाओं ने मुश्तरका तरक्की के लिए ताउन को वसअत देने पर जोर दिया। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और मंगोलिया के सदूर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस तजवीज़ की हिमायत की कि मौसमियाती तब्दीली के मसले को तंजीम के फोरम पर उठाया जाए। तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद नवीद अजहर।
उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में होने वाले इजलास के एजेंडे में तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और इलाकाई तनाज़ात पर बातचीत शामिल थी। अपने खिताब में सदर मिर्ज़ायोफ ने जोर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की पेश करदा तजवीज़ SCO तंजीम की सतह पर उठाई जाए। सदर मिर्ज़ायोफ ने SCO के रुकन मुल्कों पर जोर दिया कि हालिया तारीखी सैलाब से होने वाली तबाही से निमटने में पाकिस्तान को भरपूर मदद और हमायत फराहम की जाए। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बैनुल-अक़वामी निज़ाम को नई शक्ल दी जाए और ब्लॉक सियासत को तरक किया जाए। उन्होंने कहा कि रहनुमाओं को बैनुल-अक़वामी निज़ाम की तरक्की को ज्यादा मुनसफाना बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने खिताब में बैरूनी ताकतों की जानिब से गैर कानूनी पाबंदियों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें इक्तसादी खुदगर्जी के आलात करार दिया। उन्होंने कहा कि ताकत के नए मराकज का बढ़ता हुआ किरदार ज्यादा वाज़े होता जा रहा है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने खिताब में कहा कि हम शंघाई तावन तंजीम को एशिया की रवादारी माहौल और कदीम सकाफत के असर हाजिर में नुमाइंदे की निगाह से देखते हैं और इस बिना पर हम इस तंजीम के साथ ताल्लुकात के फरोग को अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि मुफाहमत की रोशनी में हम सिक्योरिटी से मुआशत, तवानाई से मुवासलात और सियाहत से ज़राअत तक हर शोबे में शंघाई तावन तंजीम के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और मंगोलिया के सदूर ने अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मौसमियाती तब्दीली के मसले को शंघाई ताउन तंजीम की तरफ से आलमी सतह पर उजागर करने की तजवीज़ की भरपूर तईद और हमायत का ऐलान किया। दीगर सरबराहान ने अपने खिताब में दुनिया में हम आहंगी और रवाबत के फ़रोग़ पर जोर दिया। मौजूदा इजलास में ईरान शंघाई ताउन तंजीम का मुकम्मल रुकन बन गया है। समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रुकनियत के मेमोरेंडम पर दस्तखत किए। शंघाई ताउन तंजीम 1996 में चीन के शहर शंघाई में काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के नुमाइंदों के साथ मिलकर बनाई गई। उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत की मुकम्मल रुकनियत के बाद रुकन मुल्कों की तादाद 8 हो गई। ईरान ने 2005 के इजलास में बहसियत मुबस्सर मुल्क शिरकत की और सितंबर 2021 में ईरान की मुकम्मल रुकनियत का मरहला शुरू करवाया गया। तुर्की बहसियत मुज़ाकराती साझेदार शंघाई ताउन तंजीम में शामिल है। SCO सरबराह इजलास में दूसरे मुल्कों के सरबराह भी शरीक हुए। समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सरबराह इजलास में शरीक रुकन मुल्कों के सरबराहों के दरमियान गैर रस्मी मुलाकातें भी हुईं। वज़ीर आज़म का दोस्त मुल्कों के रहनुमाओं के साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान SCO के मकासद के हसूल के लिए पुरज़्म है। रेल और सड़क के जरिए राब्तों को मजबूत बनाकर खित्ते में इक्तसादी और तजारती सरगर्मियों का फरोग चाहता है। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान और चीन की क़यादत ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का अयादा किया है। समरकंद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान और काज़ाकिस्तान के सदूर से भी मुलाकातें हुई, जिनमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इन मुलाकातों की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समरकंद में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई अमूर समेत आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद चीन के सदर के साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ये पहली मुलाकात है। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग के साथ सूबे सिचुआन में आने वाले ज़लज़ले से होने वाले अलमनाक जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम इस कुदरती आफत के दौरान चीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन की तरफ से सैलाब मुतासरीन की वक्त इमदाद को सराहते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में चीन ने बेहतरीन दोस्त का किरदार निभाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली, वबाई अमराज और बढ़ती हुई अदम मसवात जैसे चैलेंजों से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तमाम अक़वाम के ताउन से ही निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीनी शहरियों और कारोबारी इदारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा और दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जाने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने ज़बरदस्त तरक्की की है और पाकिस्तानी अवाम सदर शी जिनपिंग को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के लिए पुरअज़्म है और ताइवान, सिंकियांग और हांगकांग समेत अपने बुनियादी मफादात से मुतालिक मामलात पर चीन के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर को पाकिस्तान की पायदार सनती तरक्की, ज़राई जिद्दत और इलाकाई राब्तों के लिए अपनी हुकूमत की पॉलिसियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत, FATF, कौमी तरक्की, कोविड-19 वबा और दीगर शोबों में ताउन पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने चीन के सदर को मकबूजा
जम्मू और कश्मीर में भारत के हाथों इंसानी हकूक की संगीन सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने मसला कश्मीर पर चीन के असूली मौक़िफ़ पर उनका शुक्रिया अदा किया। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान तज़वीराती ताल्लुकात हैं और जैसे भी हालात हों दोनों ममालिक एक दूसरे से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन का काबिल इत्माद शराकतदार है। चीन के सदर ने कहा कि सीपैक की तरक्की के लिए सनत, ज़राअत, साइंस, टेक्नोलॉजी और समाजी बहबूद जैसे शोबों में ताउन बढ़ाना जरूरी है। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दी। दावत को कबूल करते हुए चीन के सदर ने कहा कि वो जल्द अज जल्द वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। दोनों रहनुमाओं ने ML1 रेलवे प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क मुआहदे के प्रोटोकॉल पर दस्तखत का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ ताउन और सैलाब से मुतासर अफराद की यकजहती और दिल खोलकर माली इमदाद की फराहमी पर अज़रबैजान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि आलमी बरादरी को मौसमियाती तब्दीली की वजह से होने वाली कुदरती आफतों के खतरे से निपटने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। वज़ीर आज़म ने आर्मीनिया के बिलाइश्तियाल हमले में 71 आज़री फौजियों की हालिया शहादत पर भी सदर इल्हाम अलीयोव से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कज़ाकिस्तान के सदर योरमत तकायोव ने भी मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कज़ाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए तंजीम के रुकन ममालिक को मिलकर काम करना होगा। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बुखारा का दौरा किया और इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल मारूफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री दी। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द ने इमाम बुखारी के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। सही बुखारी की शक्ल में अहादीस की जमा और तदवीन इमाम बुखारी का वो शानदार इल्मी कारनामा है जिससे अहले इस्लाम मुद्दतों से फैज़याब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर इमाम बुखारी कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्से देखे। इस मौके पर उन्हें कॉम्प्लेक्स की तामीर, तज़ीन और आराइश और तहकीकी मरकज़ के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ SCO सरबराह इजलास में शिरकत के बाद उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हुए तो समरकंद एयरपोर्ट पर उज़्बेक वज़ीर आज़म अब्दुल्ला अरीपोव ने उन्हें अलविदा कहा। रवानगी के मौके पर अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि रुकन मुल्कों के दरमियान ये एहसास मौजूद है कि मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा खतरा है जो हमारी तरक्की को दहाइयों पीछे धकेल रहा है। इस महाज पर तमाम रुकन मुल्क मुत्तहिद हैं। मुल्क में ग़िज़ाई अजनास का ज़ख़ीरा काफ़ी मिक़दार में मौजूद है और फौरी तौर पर ग़िज़ाई किल्लत का कोई ख़तरा नहीं है। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे राना शहजादुस्सलाम। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास डिप्टी चेयरमैन और वफाकी वजीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में आवाम को ग़िज़ाई इजनास खुसूसन टमाटर और प्याज को फास्ट ट्रैक पर मंगवाने के लिए इक़दामात की हदायत की गई। वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के सेक्रेटरी ने इजलास को बताया कि लोगों को खाने पीने की ज़रूरी अशिया जिसमें प्याज और टमाटर शामिल हैं मुहैया करने के लिए हंगामी इक़दामात किए जा रहे हैं। फोरम को बताया गया कि इस वक्त ग़िज़ाई इजनास का स्टॉक काफ़ी तादाद में मौजूद है और अगली फसल की काश्त से पहले तक अगर बरवक्त इक़दामात कर लिए जाएँ तो पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत नहीं होगी। इस सिलसिले में एक मुकम्मल रोड मैप तैयार किया जाए जिसमें गंदम, चावल, दालें और दीगर ज़रूरी अशिया की न सिर्फ फराहमी को यकीनी बनाया जाए बल्कि मुतासरा इलाकों में भी पहुँचाने के इक़दामात किए जाएंगे। फोरम ने ख़ास तौर पर हदायत जारी की कि किसी भी किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से इज्तनाब किया जाए और इस हवाले से सूबों को दरख्वास्त की गई कि वो तमाम ज़ख़ीरा अंदोज़ अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 5 अमवात के बाद जांबहक अफराद की तादाद 299 हो गई है। सैलाब और बारिशों से मुतासरा 2100 किलोमीटर से जायद सड़कों में से 1500 किलोमीटर शाहराहों की बहाली और मुतासरीन की इबादतकारी के लिए कोशिशें जारी हैं। सैलाबी पानी के बायस ओस्ता मोहम्मद डेरा अलायार रोड 72 घंटों के लिए बंद रहेगा। PDMA सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान भर में 1,85,000 मकानात को नुकसान पहुँचा जिनमें से 65,000 मुकम्मल मुनहदम हुए। मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली के साथ साथ मेडिकल कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने सिंध में सैलाब से मुतासरा सजावल और मुल्हिका इलाकों का दौरा किया। सरबराह पाक बहरिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए पाक बहरिया की इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। नेवल चीफ ने इमदादी कार्रवाइयों में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात की
اور ان کے بلند جذبے کو سراہا۔ پاکستان ایئر فورس ویمنز ایسوسی ایشن بھی سیلاب متاثرین کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے امدادی سرگرمیوں میں پیش ہے۔ اب تک 2.83 کروڑ روپے اس مد میں جمع کیے جا چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں صدر پفوا بیگم ایئر چیف مارشل کی قیادت میں کمیونٹی سینٹر ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد سمیت تمام ایئر بیسز پر ریلیف کیمپس بھی قائم کیے جا چکے ہیں۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سندھ میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ متاثرہ افراد کو راشن کی فراہمی کے ساتھ ساتھ شاہراہوں کی بحالی اور نکاسی آب کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن ناصر صدیقی۔ صوبہ سندھ میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلا سمندر برد ہو رہا ہے اور ٹھٹھا سجاول کے درمیان دولہا دریا خان پل پر پانی کی سطح 3.5 لاکھ کیوسک پر پہنچ گئی ہے۔ منصر جھیل کا پانی تیزی سے دریائے سندھ میں جا رہا ہے، جبکہ جامشورو کی تحصیل سہون میں زیر آب آنے والے دیہات اب بھی کافی حد تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ دادو کی تحصیل بھان سعید آباد، خیرپور ناتھن شاہ اور ارد گرد کے دیگر علاقوں سے بتدریج پانی اترنا شروع ہو گیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے ٹنڈو الیار، میرپور خاص اور عمر کوٹ سمیت دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ ان اضلاع میں قائم امدادی کیمپوں میں گئے اور وہاں مقیم سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے متاثرین کو ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مختلف اضلاع میں سیلاب کے پانی میں ڈوبے ہوئے دیہات کا دورہ کیا اور پانی کے فوری نکاس کے لیے ہدایت جاری کی۔ انہوں نے مختلف طبی کیمپوں کا بھی دورہ کیا اور وہاں سیلاب متاثرین کو فراہم کی جانے والی طبی سہولتوں کا معائنہ کیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ متاثرین کی شکایتوں کے ازالے کے لیے فوری اقدامات کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش اس وقت یہ ہے کہ جلد سے جلد ان کے گاؤں سے، ان کی زمینوں سے پانی نکالا جائے تاکہ یہ اپنے گاؤں میں واپس جا سکے۔ جو راشن یا ٹینٹس ریکوائرمنٹ ہے، میں کئی جگہ بتا چکا ہوں، مجھے 15 لاکھ کم از کم ٹینٹ چاہیے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، ان کی ضرورت ہے۔ روزانہ 6، 7، 8 ہزار سے زیادہ ٹینٹ نہیں مل رہے۔ حکومت سندھ پوری کوشش کر رہی ہے ساری انتظامیہ کے ساتھ، جہاں جہاں ایکشن لیا جانا چاہیے ایکشن لیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے کہا ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب سے شدید نقصان ہوا۔ ہم نے اپنی وزارت کو ایک ون نیشن کا پیغام دیا ہے کہ آپ کو جہاں پر اور جس کی ڈومین میں بھی ریہیبلیٹیشن ہو یا مینٹیننس ہو یا کنیکٹیویٹی کو بحال کرنا ہو، مقامی روڈز ہوں، صوبائی روڈز ہوں یا قومی شاہراہیں ہوں، ان کو بحال کریں۔ اس سے پہلے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے جلد تعمیر کی جائے۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں قائم امدادی کیمپوں میں شدید گرمی کے باعث وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں، جبکہ ڈینگی اور ملیریا کے کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، پاک فوج اور دیگر فلاحی اداروں کی جانب سے طبی کیمپوں کا انعقاد کے ساتھ ساتھ سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر خان نے دادو کا دورہ کیا اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متاثرہ افراد سے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ داؤد کالونی میں قائم ریلیف کیمپ میں متاثرین کو خوراک، ادویات، پینے کا صاف پانی اور بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر توانائی نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ متاثرین کے بچوں کی تعلیم کا بھی جلد انتظام کیا جائے گا۔ وزیر برائے ریلوے سعد رفیق نے کہا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے معطل ریلوے روٹس کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ کوئٹہ تفتان ٹریک 30 ستمبر تک بحال کر دیا جائے گا۔ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیرہ الیار سے جیکب آباد تک 11 کلومیٹر ریلوے ٹریک پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ بلان ریلوے برج کی دوبارہ تعمیر کا کام جلد شروع کیا جائے گا۔ تفصیل بتائیں گے میر سلام جوگی سے۔ موجودہ حکومت بارشوں اور سیلاب سے شدید متاثرہ ریلوے ٹریکس کی بحالی کے لیے پاک فوج، ایف سی اور این ایل سی کی معاونت سے دن رات کام کر رہی ہے۔ کوئٹہ میں میڈیا بریفنگ کے دوران وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کوئٹہ تفتان ریلوے ٹریک کو 30 ستمبر تک بحال کر دیا جائے گا۔ کوئٹہ تفتان سیکشن 104 جگہ سے بریچ ہوا ہے اور کچھ برج گرے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم 30 سپٹمبر تک بحال کر دیں گے۔ تافتان دال بندین بحال ہو چکا ہے، لیکن 30 ستمبر انہوں نے مجھے ڈیٹ دی ہے، شاید 2-3 دن اوپر لگے لیکن وہ بحال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ جیکب آباد سے ڈیرہ لایار تک ریلوے ٹریک ابھی تک پانی کے نیچے ہیں۔ ہیرک برج کا جہاں پہ ہم کل گئے تھے، اس کی ڈیزائننگ ایک کراچی کی بڑی کمپنی کر رہی ہے، انشاءاللہ این ایل سی اس کو تعمیر کرے گا۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا
केसीपे के मरकजी शहर गवादर में रेलवे का दफ्तर भी कायम किया जा रहा है। मीर सलाम जोगेज़ई, पीटीवी न्यूज, कोयटा। और सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बरादरी की जानिब से इमदादी सामान भिजवाया जा रहा है। अब तक मुख्तलिफ मुल्कों और तंजीमों की जानिब से 110 तैयारे पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। ओमान से इमदादी सामान लेकर परवाज नूर खान एयरबेस पहुंची। वजीर मुमलिकत बराए तवानाई मोहम्मद हाशिम नोतिज़ई और NDMA हुकाम ने सामान वसूल किया। तुर्किया से इमदादी ट्रेन मजीद 380 टन सामान लेकर सरहदी शहर तफ्तान पहुंची, जहां ये सामान हिलाल अहमर पाकिस्तान के हवाले किया गया। तुर्किया की जानिब से ज़मीनी रास्ते से ये तीसरी इमदादी खेप है। ये इमदादी सामान बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पसिंजो ने अवरान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात का जायजा लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये कड़ा वक्त है, मुतासरीन की बहाली तक आराम से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला को बताया गया कि आवरान में तमाम मुतासरा सड़कें बहाल कर दी गई हैं, जबकि नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ तामीराती मनसूबों का संग बुनियाद रखते हुए तहसील झाव को म्यूनसिपल कमेटी बनाने का भी ऐलान किया। इमरान खान की सिक्योरिटी साबिक 4 वज़राए आज़म में सबसे ज़्यादा है। जंग अखबार में छपने वाले आर्टिकल लाडला खान से सादालो अब्बासी तक में मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने सिक्योरिटी मुआवजे की बुनियाद पर इमरान खान को लाडला करार दे दिया। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल के खिलाफ बातें करना तो आसान है, ताहम इस हवाले से अमली मिसाल बनना मुश्किल काम है। जंग अखबार में छपने वाले आर्टिकल लाडले खान से सादा लौह अब्बासी तक में सरकारी मालूमात की रोशनी में ये इंकिशाफ किया गया है कि इमरान खान को कानून नाफिज करने वाले मुख्तलिफ इदारों की जानिब से 255 सिक्योरिटी एहलकार फराहम किए गए हैं। खान की हिफाजत के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की एक छोटी तादाद भी तैनात है। उन्हें 5 गाड़ियां और जैमर्स भी फराहम किए गए हैं। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी एक खुशगवार और मुनफरिद मिसाल है, क्योंकि मुल्क के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से उनके साथ एक भी सरकारी सिक्योरिटी एहलकार नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी को सिर्फ 3 हाउस गार्ड फराहम किए गए थे, जबकि मुतालबे पर उन्हें पुलिस का एक हिफाजती दस्ता भी फराहम किया गया। राजा परवेज अशरफ को 3 बंदूक बरदार और 2 FC गार्ड्स की पेशकश की गई है। मुतालबे पर उन्हें एक पुलिस का हिफाजती दस्ता फराहम किया गया है। इमरान खान के मामले में इस्लामाबाद पुलिस, KPK पुलिस, GB पुलिस, FC रेंजर्स, अस्करी गार्ड्स, बन्नी गाला सिक्योरिटी गार्ड्स समेत मुख्तलिफ महकमों के सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी तैनात है। इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए SP लेवल का एक पुलिस अफसर, 4 इंस्पेक्टर्स, 2 सब इंस्पेक्टर्स, 19 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, 179 कांस्टेबल्स, 2 लेडी पुलिस एहलकार, 2 स्पेशल ब्रांच के एहलकार, CTD फोर्स के 15 एहलकार, 3 ड्राइवर और 28 गार्ड्स तैनात हैं। इमरान खान को उनकी सिक्योरिटी के लिए फराहम की गई सरकारी गाड़ियों में एक लैंड क्रूजर, 2 जैमर्स गाड़ियां, GB पुलिस और KPK पुलिस से एक और 2 पिकअप्स शामिल हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि इंस्टीट्यूट फैशन डिजाइनिंग लाहौर मुतल्लिका शोबों में निजी शोबे के साथ रवाबित को फरोग दे। इंडस्ट्री के साथ रवाबित की बदौलत तलबा को इल्म और हुनर से आरास्ता और मसनूआत के मेयार और कदर में इजाफा करने में मदद मिल सकेगी। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया आर्ट और डिज़ाइन के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर अफराद से रब्ता करे। माहिरीन के इल्म और तजर्बात की मदद से तलबा को सीखने की रफ्तार बढ़ेगी। सदर ममलिकत ने कहा कि इंस्टीट्यूट अपने कवानीन को मुतल्लिका हुकूमती कवायद और ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए तश्कील दे। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात से तालीमी, इंतजामी और इंसानी वसाइल के बारे में फैसला साजी मज़ीद मजबूत और तेज़ करने में मदद मिलेगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल फिर तब्दील कर दिया गया है। ये इजलास अब 22 सितंबर के बजाय 20 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुश्तरका इजलास के शेड्यूल में तब्दीली हासिल इख्तियारात के तहत की है।
मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि भारतीय फौज की तरफ से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। श्रीनगर, पुलवामा, इस्लामाबाद, शुपियां, बारामूला और दीगर अजला में जमात इस्लामी के रहनुमाओं समेत दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। KMS के मुताबिक काबिज इंतजामिया ने मजहबी रहनुमा मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी, मौलाना मुश्ताक अहमद वेरी, अब्दुल मजीद डार अलमदनी समेत मुतादिद गिरफ्तार अफराद पर काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू कर दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फौजी और पुलिस एहलकारों की तरफ से लोगों में खौफ पैदा करने और उन्हें अपनी मुनसिफाना जिदोजहद से दस्तबरदार होने पर मजबूर करने के लिए गिरफ्तारियों में तेजी लाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि इस तरह के वहशियाना हथकंडों से कश्मीरी अवाम का जज्बा आज़ादी मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता। काबिज़ हुकाम ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को एक बार फिर श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने से रोक दिया। मीर वाइज को 5 अगस्त 2019 से मुसलसल गैर कानूनी घर में नजरबंद रखा गया है, जब भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख कर दिया था। जनेवा में कश्मीरी नुमाइंदों अल्ताफ सैनवानी, सैयद फैज़ नक्शबंदी, सरदार अमजद यूसुफ खान, शमीम शाल और सायरा शाह ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल के जारी कामन में इजलास के दौरान आम बहस में हिस्सा लेते हुए आलमी इदारे पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजी की तरफ से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए एक कमीशन कायम करे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इदारा मकबूजा इलाके के लोगों की जान और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तरीक़ाकार को बुरेकार लाए। वफाकी हुकूमत ने चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और चारों सूबों के लिए पाक फौज की खिदमात की मंजूरी दी। सिक्योरिटी सूरत हाल मॉनिटर करने के लिए वजारत दाखिला में सेंट्रल कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि चेहलम इमाम हुसैन के मौके पर पाक फौज सिविल हुकूमत की मदद के लिए सिक्योरिटी के फराइज़ सर अंजाम देगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक फौज के जवान पहले ही सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के कामों पर मामूर हैं। पाक फौज सैलाब ड्यूटी के साथ साथ चेहलम की सिक्योरिटी के लिए भी अपनी खदमात सर अंजाम देगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानिसार असहाब के चेहलम का जुलूस G62 मरकजी इमाम बाग का असना अशिया से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका जुलूस नौह खानी की और अज़ादारी करते हुए नवासा रसूल की अजीम शहादत की याद मनाते रहे। इंतज़ामिया की जानिब से जुलूस के शुरका की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। नाज़रीन, मानसून के बाद सिंध में डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा हुआ है। सिंध हुकूमत की जानिब से डेंगू लार्वा को तल्फ करने के लिए फ्यूमिगेशन मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। तफसील जानते हैं आयशा आफरीन से। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची इन दिनों डेंगू के निशाने पर है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मूसलाधार बारिशों के बाद कराची में निकासी आब और सफाई सुथराई की खराब सूरत हाल के बाइस शहर में हालिया हफ्तों में डेंगू के केसेस में इजाफा देखने में आया है। अब तक कराची डिवीजन में 1620, हैदराबाद डिवीजन में 10, मीरपुर खास डिवीजन में 12, लाड़काना डिवीजन में 1, सक्खर डिवीजन में 10, जबकि शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में 8 डेंगू के केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। रवा साल 2022 में अब तक कराची में डेंगू से 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें तो डेंगू से बचाव मुमकिन है। इसकी जो खास बात होती है डेंगू वायरस की वो ये होती है कि ये साफ पानी में पैदा होता है। इंसान को काटता है या बाइट करता है वो असर के वक्त में और सुबह के वक्त में करता है। इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, सिर्फ एहतियाती जो है वो इसका इलाज है। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो जो सोल्यूशन होता है मॉस्किटो मच्छर भगाने का वो इंसान को जो है वो लगा के बाहर निकलना चाहिए। जब ये सीज़न हो तो उस वक्त जो कपड़े हैं वो फुल आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए ताकि मच्छर जो है वो काट ना सके। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में डेंगू लार्वा को तल्फ करने के लिए स्प्रे और फ्यूमिगेशन मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के 158 कंफर्म केसेस सामने आए। रिपोर्ट होने वाले 79 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से, 29 का रावलपिंडी से, जबकि 15 का ताल्लुक गुजरांवाला से है। महकमा सेहत के मुताबिक वफाकी दारुल-हुकूमत में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 113 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 1056 हो गई है।
बंदरगाहों के वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने बल्दिया कराची को कराची पोर्ट ट्रस्ट की जानिब से 23 करोड़ रुपए का चेक पेश किया है। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फैसल सब्जवारी ने कहा कि शहर की तरक्की के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। माजी में PTI की हुकूमत ने सिंध हुकूमत से ताउन से गुरेज किया था, जिसके नतीजे में शहर में तरक्की का अमल सुस्त हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची तो पता चला कि 4 ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो कराची शहर में हो सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं हुए कि कुछ पे सिंध हुकूमत से KPT को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दरकार थे और कुछ पर KPT को सिंध हुकूमत से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दरकार थे। और बदकिस्मती के साथ उस वक्त की जो सियासी क़यादत थी उसने ज़रूरत महसूस नहीं की कि राबता हो सूबाई हुकूमत के साथ और ये मसले उलझ गए। आज सूरत हाल ये है कि न सिर्फ राब्ता बहाल है बल्कि हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कोई अरबों रुपए खर्च करके हम माए कोलाची के ऊपर KPT अपना हिस्सा लगाने जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये बात खुशाइंद है KPT ने अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा रकम बल्दिया कराची को अदा की है। और नाज़रीन, खजाने के बारे में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास कैसर अहमद शेख की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर ममलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने इजलास को बताया कि PTI हुकूमत के इनहराफ की वजह से IMF ने प्रोग्राम पर अमल दरामद रोक दिया था। हकीकत यह है कि मुआहिदा पाकिस्तान के कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल तौर पर तय पाया। उन्होंने मुल्क की मईशत को मुतहर्रिक करने के लिए तवील मुद्दती पॉलिसीज़ पर जोर दिया। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ को मद्देनजर रखते हुए सरकारी तरक्याती फंड के तखमीने दोबारा मुरतब किए जाएंगे। कायमा कमेटी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हिदायत की कि सैलाब से होने वाली तबाही का सर्वे जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया जा सके। इजलास में वजारत खजाना और स्टेट बैंक को हिदायत की गई कि महंगाई की सूरत हाल और डॉलर की कदर में इजाफे पर गहरी नजर रखी जाए। अरकान ने कहा कि स्टेट बैंक अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए मालियाती मसाइल पर काबू पाए। चेयरमैन ने कहा कि शरह सूद में इजाफा महंगाई को कंट्रोल करने का हल नहीं, बरामदात में इजाफे के जरिए डॉलर की आमद की हौसला अफजाई की जाए। लाहौर में सैलाब से मुतासरा अफराद की मुकम्मल बहाली के लिए शहरी फ्लड रिलीफ कैंप्स में ज़रूरत की अशिया अतिया कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे नवीद हयात। मुल्क इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों का शिकार हो चुका है। कई देहात सफाहस्ती से मिट गए हैं और लाखों अफराद अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। ऐसे में सैलाब से मुतासरा अफराद की मुकम्मल बहाली के लिए लाहौर में पाक आर्मी, पंजाब रेंजर्स, ज़िला इंतज़ामिया और फलाही तंजीमों की जानिब से इमदादी कैंप लगाए गए हैं, जिनमें शहरी नकद रकूम, खाने पीने की अशिया, कपड़े, बिस्तर, अदवायात और ज़रूरत की दीगर अशिया अतिया कर रहे हैं। गली गली में, हर रोड रास्ते पे हर मंजर यही नज़र आ रहा है कि हर बंदा अपनी तरफ से दिलो जान से सैलाब ज़दगान के लिए फंडिंग दे रहा है। ये सर वो हमारे मुसलमान भाई हैं, ये हमारा हक बनता है, इस मुश्किल वक्त में हम उनकी इमदाद करेंगे। हालिया मानसून बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब ने चारों सूबों में मामूल की जिंदगी दरहम बरहम कर दी। ऐसे में पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर ये दिखाया कि मुसीबत और दुख की इस घड़ी में मुतासरीन तन्हा नहीं। राशन दे के जा रहे हैं, कैश दे के जा रहे हैं, पानी दे के जा रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा निज़ाम है। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं हमारा साथ उनके साथ है। सलाम मुतासरीन। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली और उनके घरों में दोबारा वापसी के लिए हर शख्स अपनी ज़ाती हैसियत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाल रहा है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। लाहौर में सैलाब मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम के मौके पर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है, दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा। बाद में सैयद हसन मुर्तज़ा ने दरिया चनाब के कटाव से मुतासरा कस्बा सहमल के सैलाब मुतासरीन में फी कस 25,000 रुपये नकद इमदादी रकूम तकसीम की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया गया। ये दिन मनाने का मकसद तमाम मखलूक़ात के साफ और सेहतमंद मुस्तक़बिल के लिए शऊर, जिम्मेदारी और अमली काम को आगे बढ़ाना है। तफसील से आगाह करेंगी सदफ अफसर। ओजोन जमीन के गिर्द वो तय है
جو سورج کی خطرناک الٹرا وائٹ شعاؤں کو نہ صرف زمین کی طرف آنے سے روکتی ہے بلکہ زمین پر اس کے نقصان دہ اثرات کا خاتمہ کرتی ہے۔ اگر سورج سے نکلنے والی یہ خطرناک شعائیں براہ راست زمین پر پہنچ جائیں تو جانداروں کو موت کے منہ تک پہنچا سکتی ہیں۔ اسی لیے قدرت نے زمین کو ان شعاؤں سے بچانے کے لیے ایک خاص فلٹر بنایا ہے جسے اوزون کی تہ کہتے ہیں۔ انسانی ترقی نے کرۂ ارض کی حفاظت کے اس قدرتی نظام کو بھی خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ آلودگی، درختوں کی کٹائی، بدلتے موسم، صنعتی کارخانوں کے دھوئیں اور دیگر زہریلی گیسوں کے اخراج سے اوزون کی تہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سال کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہونے والی سیزنل ویریشنز کی ورسٹ فارم دیکھی ہے، جس میں موسم بہار کا نہ آنا، موسم گرما میں شدید ہیٹ ویو اور مونسون کی شدید بارشیں، جس کی وجہ سے ہونے والا ڈیڈلی سیلاب ہے۔ سورج کی تابکار شعاؤں کا زمین پر براہ راست آنے کی وجہ سے انسانوں اور جانوروں میں جلدی بیماریاں اور مختلف اقسام کے کینسر میں بھی کئی گنا اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر باہمی کوششوں سے اوزون کی تہ کا تحفظ ممکن ہے، تاہم اوزون کی تہ کو مکمل طور پر بچانے کے لیے صنعتوں کے زہریلے دھوئیں، ٹریفک کے دھوئیں سمیت ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ اوزون کی تہ مضبوط ہو جائے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جہانی ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ویسٹ منسٹر ہال میں ملکہ کے تابوت کے آخری دیدار کے لیے شہریوں کی لمبی قطار موجود ہے جو 6 کلومیٹر تک پھیلی ہے۔ کنگ چارلس اور ملکہ کیملا نے ویلز کے لنڈاف کیتھیڈرل میں ہونے والی دعائیہ تقریب میں شرکت کی۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات سے قبل رائل نیوی کے اہلکاروں کی ریہرسل جاری ہے۔ آخری رسومات کی تقریب میں رائل نیوی کے اہلکار ملکہ کے تابوت کے ساتھ لندن کی سڑکوں پر 2 میل تک گشت کریں گے۔ آن جانی ملکہ الزبتھ دوم کی تدفین پیر کو لندن میں ہوگی۔ ونسر قلعے کے قریب سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ یوکرین نے روس سے مزید علاقے واگزار کرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ شمال مشرق میں ایک بڑا علاقہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے اور آزاد کرائے گئے ان علاقوں میں جنگی جرائم کے ارتکاب کا شبہ ہے۔ واپس لیے گئے علاقوں میں عقوبت خانے ملے ہیں جہاں روسی فوج کی جانب سے مقامی شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ حکام کے مطابق ایزیوم کے علاقے میں اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں۔ یہ شہر حال ہی میں روسی افواج سے بازیاب کرایا گیا ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ اجتماعی قبروں کے بارے میں مزید مستند معلومات عالمی برادری کو فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں دنیا کو معلوم ہو کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ روس کو ان اقدامات پر جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ دوسری جانب روس نے مطالبہ کیا کہ یورپی ملک یوکرین سے برآمد کیا گیا اناج غریب ملکوں کو بھیجے جانے کا ثبوت پیش کریں۔ بحر اوقیانوس اور بحر منجمد شمالی کے درمیان روس کی جنگی مشقیں جاری ہیں جن میں مختلف اقسام کے اسلحے کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ امکا 2022 کے نام سے ہونے والی یہ مشقیں بحر اوقیانوس کے اس حصے میں ہو رہی ہیں جو روس کو امریکی ریاست الاسکا سے الگ کرتا ہے۔ ان مشقوں کے دوران آبدوزوں سے اینٹی شپ کروز میزائل داغے گئے جو 400 کلومیٹر تک اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سبی 42، روہڑی، بہاول نگر اور سکھر میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔